मोदी को हैदराबाद हाउस में और कुछ ही देर में जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट। Your Excellency, Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Egypt bilateral cooperation. These are by the way of exchange of postal stamps, memorandums of understanding, and memorandums of cooperation, followed by press statement by our two leaders. First, we shall witness the exchange of postal stamps to commemorate the 75 years of establishment of diplomatic relations between our two countries. This exchange will be on the Egyptian side by Dr. Amar Ahmed Samit Talat, Minister for Communication and Information Technology, and on the Indian side by Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communication and Electronics and Information Technology. Mr. Ministers, please. Thank you, Mr. Minister. We now have the Memorandum of Understanding on Cooperation in the area of cyber security between the Indian Computer Emergency Response Team and the Egyptian Computer Emergency Readiness Team. On the Egyptian side, we will have Dr. Amar Ahmed Samit Talat, Minister for Communication and Information Technology, and from the Indian side, Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications, Electronics and Information Technology. Mr. Ministers, please. Thank you, Mr. Minister. Third, we have the Memorandum on Cooperation in the Field of Information Technology between India and Egypt. I may again request Dr. Amar Ahmed Samit Talat, Minister of Communication for Information Technology from Egypt, and Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology from India to exchange the documents. Thank you, Mr. Ministers. Next, we have the Memorandum of Understanding in the field of culture. From the Egyptian side, we have Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs. From the Indian side, Shri G. Krishna Reddy, Minister of Culture, Tourism, and Development of Northeastern Region. Mr. Ministers, please. Thank you, Ministers. We next have the Memorandum on Cooperation in Youth Matters. From the Egyptian side, Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs, and from the Indian side, Shri Anurag Singh Thakur, Minister of Information, Broadcasting, and Youth Affairs and Sports. Next, we have the Memorandum of Understanding for Cooperation on Broadcasting between Prasar Bharati and National Media Authority of Egypt. From the Egyptian side, Mr. Sameh Hassan Shokri, Minister of Foreign Affairs, and from the Indian side, Shri Anurag Singh Thakur, Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports will do the exchange, please. Thank you, Ministers. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Abdul Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
honorable ministers, members of both delegations, distinguished guests, friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir, the floor is yours. Your Excellency, राष्ट्रपति सीसी, दोनों देशों के मंत्रीगण एवं डेलीगेट, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूँगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों की आवश्यकता के समय
एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर ये तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्ट की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत है। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपको और इजिप्ट के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ सैयद नरेंद्र मोदी रईस वज़राء जमहूरियत الهند، السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والهندي، إنه لمن دواعي سروري أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء السيد مودي لأكون بينكم غدا مشاركا في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 ليدشن بلدكم الكبير حلقة جديدة من تاريخه العظيم. وأتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا، حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها. السيدات والسادة، لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل देवियों और زيادة सज्जनों, حجم التبادل वार्ता के التجاري दौरान وتعظيم हमने व्यापार الاستفادة और निवेश के क्षेत्र المشتركة में दोनों من देशों के القدرات बीच والمزايا الإنتاجية संबंधों की स्थिति والتصديرية की समीक्षा للبلدين की है। كي हमने نستجيب व्यापार, للأولويات विनिमय की الاقتصادية मात्रा والاجتماعية बढ़ाने और للشعبين उत्पादक और المصري निर्यात क्षमताओं और लाभों से كما संयुक्त लाभों دولة का رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا अधिकतम करने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मिस्र और भारतीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को पूरा ताकि कर सकें। मैंने प्रधानमंत्री को मिस्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों और सरकार द्वारा विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया। मैंने इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ाने की अपनी आकांक्षा जाहिर की है, उनके सामने जाहिर की है। ख़ासतौर से सुएज़ नहर इकोनॉमिक जोन में विशेष रूप से हमने भारतीय कंपनियों के अंदर जो कि मिस्र में पहले से काम कर रहे हैं, हमने उनके प्रेजेंस को मजबूत करने के बारे में उनका जज्बा देखा है। बहुत सारी भारतीय कंपनियां इसमें आशाजनक क्षेत्रों में, प्रॉमिसिंग क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। दूसरी ओर हमारे दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में साझेदारी की और को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। हम कई अपने क्षेत्रों मुख्य रूप से निवेश, उच्च शिक्षा, रसायन और दवा उद्योग, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में हमारे बीच सार्थक सहयोग को मजबूत कराने पर हम दोनों सहमत हुए। मैंने प्रधानमंत्री जी को
नियमित चैनल बनाने की ज़रूरत पर मुकम्मल दिया, जो दोनों देशों में सफल अनुभवों और इनिशिएटिव से संबंधित अनुभवों के ज्ञान को आदान प्रदान को प्रोत्साहन देगा। विशेष रूप से स्थानीय उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग के विकास के संदर्भ में नागरिकों के लिए एक डिजिटल लाइफ मुहैया करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। ये भी कोई रहस्य की बात नहीं है कि मिस्र और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी जड़ें इतिहास में पैवस्त हैं, और इसीलिए हम दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों और रिश्तों को मजबूत करने की और दोनों लोगों के बीच संचार के साधनों को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर हम लोगों ने जोर दिया। विशेष रूप से काहिरा और नई दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्लाइट की तादाद बढ़ाने के बारे में भी हमने बातचीत की। हमने महामहिम प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हम मिस्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट को देखना चाहते हैं, उनको स्वागत करना चाहते हैं। रक्षा सहयोग आज की वार्ता के एजेंडे में शामिल था। इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध शुरू करने की आम इच्छा का सबसे अच्छा प्रमाण है। जैसा कि हमने इस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए सामान्य संयुक्त अभ्यास, अनुभवों के आदान प्रदान और अतिरिक्त क्षितिज का पता लगाने के लिए काम जारी रखने की पुष्टि की है। मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम हित के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी और उपयोगी चर्चा हुई। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक संकट और विशेष रूप से विकासशील देशों पर उनके प्रभाव हैं। हमारे अनुमान इस तथ्य से मेल खाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले बार बार आने वाले संकटों ने एक बार फिर मित्र देशों के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के महान मूल्य को प्रदर्शित किया है, ताकि इन संकटों के उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है, जो यह है कि एक साथ सहयोग से हिंसा को ख़त्म करने की मदद मिलेगी, क्योंकि हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधारा का प्रसार एक वास्तविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने प्रधानमंत्री के साथ शर्म और शेख में COP27 सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम की भी समीक्षा की। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और नुकसान के वित्त पोषण के लिए एक कोष की स्थापना के संबंध में, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां बुनियादी ढांचे की कमी है, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने में असमर्थ हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 के लिए भारत के G20 समिट की मेज़बानी में होने वाले सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण देने के लिए अपना